Kathy, for accepting our invitation and joining today us for this our webinar series, Stories to be Worth Sharing. Uh, Thanks to all the participants जो आज हमें join कर रहे हैं for this webinar. And on behalf of She and We Women Entrepreneurship Foundation, मैं सबको welcome करती हूँ for this webinar series. It takes me immense pleasure to introduce such young and talented women entrepreneur, Khyati Bhandari. So, Khyati is born and brought up in Bundi, Rajasthan. She was district topper in 12th class, done CA, CS, DISA, BCom through self-study only. She is the founder of Institute, Innoverse Career Crafter in Bundi itself, and successfully she has completed 4 years of the her institute. The one in the town, the institute, the uniqueness of the institute is it is an institute in the town which provides the professional education. Also, Khyati is the president of Bundi chapter of an international NGO called Junior Chambers of International JCI. So JCI basically indulge into a different social activities, awareness by collateral of academic achievement. So Khyati is also a at par excellent trainer, and she got plenty of awards in different talent competitions and all that. So, with this introduction, Khyati, now I am, giving forum, giving platform to you, so you can go ahead with the same. Thank you so much, and I'm really pleased. My institute is really pleased to have such a talented women entrepreneur today to share her story. So, once again, I welcome you, and now it's over to you. So, let me Thank first, you. yeah. थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बड़ा थैंक यू है कृति मैम को, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि घर बैठकर भी हम इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं. दूसरा, जो आपका एक मिशन है, एक फाउंडेशन है शी एंड वी, ये अपने आप में एक क्या कह सकते हैं, हम लोग लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है कि ऐसे करके हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं. और आप वेबिनार सीरीज रन कर रहे हैं इतने क्रूशियल टाइम में भी, और स्टोरी शेयर कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि लोग मोटिवेट हो सके. True, सो true. ये बहुत कमेंडेबल है. सो थैंक यू सो मच. आप सोसाइटी के लिए और अपने सराउंडिंग के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, और आपके साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा मुझे. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट फॉर वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन. सो ख्याति, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉक शो. नाउ सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, such a wonderful academic excellence you have, CA, CAS, DICA, and whatnot. Now, after doing so many things, why you choose to do a business? क्यों job के लिए आपने नहीं सोचा? Can you just tell us about that? श्योर. मेरा ऐसा मानना है कि हम पढ़ाई करते हैं या कोई डिग्री लेते हैं तो वो जॉब करने के लिए नहीं लेते. ऐसा नहीं है कि मैंने सीए किया है तो मुझे सीए का ही वर्क करना है, सीए की फील्ड में ही जॉब करना है. पढ़ाई बेसिकली एक गुरुकुल की तरह होती है जो आपके माइंड को डेवलप करने के लिए की जाती है. आप अच्छा एजुकेशन लोगे, आपका माइंड डेवलप हो जाएगा. अब उस डेवलप्ड माइंड को आप कहाँ यूज करते हो वो आपके ऊपर है. फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने वो डेवलप्ड माइंड से जॉब करी तो आपका जो माइंड है वो किसी और के पैसा कमाने के काम आएगा, ना कि आपके पैसा कमाने के. उसका प्रॉफिट का कुछ शेयर आपको दिया जाएगा क्योंकि आप उसके लिए वर्क कर रहे हो, और आपकी क्रिएटिविटी किसी और के काम आएगी. यही अगर आप जॉब करते हो तो आपका जितना भी माइंड है, आपका क्रिएटिविटी है, सारा स्किल्स आप यूज कर सकते हो. और सबसे इम्पोर्टेंट, यू आर द बॉस. आपको किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कि सर मेरे को 2 दिन के लिए कहीं जाना है, प्लीज चल जाऊं क्या. यू कैन मैनेज योर सेल्फ. Okay, so that was the basic, zeal to start your own. Excellent, excellent. So it's always pleasure to have your own boss. You're not supposed to report anyone. So इसके थोड़े loopholes भी हैं, but majority of the time, yes, we get lots of freedom for that. Excellent. Now my next question is, now Kathy, there is a lots of rain, heavy rain is here. So meanwhile, if in between I disconnect, then excuse me for a 1 or 2 minutes, I'll be reconnect. So if there will be an issue. Now my second question to you: there are 4 years.
4 years into the professional education, professional coaching, professional career guidance. It's not a less time, right? तो ये 4 साल आपके कैसे रहे? How was your journey? अगर एक एज एन एंटरप्रेन्योर, एक एज अ विमेन एंटरप्रेन्योर, सेल्फ मेड इंडिविजुअल अगर आपको पूछा जाए तो ये 4 साल आपके कैसे रहे? ये 4 साल ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। कुछ लोग जो मेरे बारे में नेगेटिव बोल रहे थे, 4 इयर्स के अंदर अंदर उनके थॉट्स पॉजिटिव कन्वर्ट हो गए। हम्म। आपको शुरू में जब आपके लिए नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं वो आपको सुनना नहीं है, तब आपको कान बंद कर लेना है और आपको हार्ड वर्क करना है, क्योंकि सबको ये लगता है कि ये चलेगा नहीं, आप कुछ नया कर रहे हो, और आप लड़की हो तो आपका खुद का फ्यूचर डिसाइडेड नहीं है कि आप कितना टाइम यहाँ पर हो। सो बेसिकली 4 इयर्स की जर्नी में, भले ये बहुत छोटा टाइम पीरियड है, लेकिन 4 इयर्स की जर्नी में मेरा लाइफ जो है ना पूरा अपोजिट हो चुका है। और जो लोगों को मेरे उस पे कैलिबर पे डाउट था, नाउ दे बिलीव कि हाँ ऐसा हो सकता है, और वो आके कहते हैं कि काश हमारे बच्चे भी आपकी तरह कुछ करें। तो आई थिंक ये लाइन 4 इयर्स की जो सक्सेस स्टोरी है वो बता सकती है। Okay, great, excellent. Now, पिछले 1 साल से आई एम ऑल्सो इनटू अ बिजनेस, एंड ऐसा बोला जाता है कि कोई भी बिजनेस में एक भी दिन विदाउट ट्रबल्स, दैट्स नॉट अ बिजनेस. सो एक जॉब के माइंडसेट से सीधा बिजनेस में जंप करना, तो वो मैंने 1 साल में रियलाइज कर लिया. देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट्स ऑफ स्ट्रगल व्हिच वी आर फेसिंग एज एन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर. नाउ, अगर बहुत स्पेसिफिक बात करें तो आपका जो बिजनेस है, आपका जो एंटरप्राइज है, उसके रिलेटेड व्हाट काइंड ऑफ challenges you have faced throughout this 4 years of journey? Can you just enlighten us more about the specific problems? एक नॉर्मल टीचर यदि कहीं जॉब करता है तो 1 घंटे की क्लास लेने के बाद वो फ्री है, वो घर जा सकता है। लेकिन उसकी जगह यदि आपका खुद का इंस्टीट्यूट है तो उस 1 घंटे की क्लास के बाद आपको नेक्स्ट डे के स्केड्यूल सेट करने हैं, टेस्ट प्लान करने हैं, सब कुछ सही से चल रहा है, सारा फीस कलेक्शन प्रॉपर है या नहीं है, मैनेजमेंट पार्ट, ये सब चीजें आपको पढ़ाने के एक्स्ट्रा जो है देखनी रहती है। सो ये चैलेंजेस जरूर फेस करने पड़ते हैं, बट ये ही वो चैलेंजेस ऐसे हैं जहाँ पे आप अपने मैनेजमेंट स्किल्स को यूज कर सकते हो। अगर आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स हैं तो ये बहुत ही छोटी सी चीज है जिसको आप बहुत इजीली कोप अप कर सकते हो। और अभी की टेक्नोलॉजी में तो हम लोग ओवर द कॉल सब कुछ स्केड्यूल कर सकते हैं विद इन मिनट्स। सो ये चैलेंजेस को कोप अप किया जा सकता है थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, एक्सेलेंट. नाउ, जैसे आपकी इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने भी बहुत कुछ देखा ऑन फेसबुक, ऑन अदर सोशल मीडियाज एंड ऑल दैट, एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज द वे एंड द फ्लो. जिस वो 4 साल में आपने जो ब्रांड बिल्ड किया है, वो भी बूंदी जैसी, it's a small town, if I'm not wrong, right? So ऐसी यस highly professional institute, बूंदी जैसे टाउन में. So I wanted to know, and my audience wanted to know, okay, what kind of services you are providing, what kind of coaching you are giving, what kind of courses you are teaching. If you can enlighten us for that, yes. यस श्योर। प्रोफेशनल और एक नॉर्मल में जो डिफरेंस है वो ये है कि एक तो कोर्स आपका जो है, मतलब मैं अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करती हूँ तो मैं कोर्स के हिसाब से बात करती हूँ। यदि आप स्टूडेंट को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स देते हैं, उसका एक जो टाइम फ्रेम आपने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया, जैसे कोई स्टूडेंट एडमिशन कराने आया है एंड आई एम प्रॉमिसिंग कि मैं 3 महीने के अंदर आपका कंप्लीट कराऊंगी, तो मुझे उसको 3 महीने के अंदर अंदर 2-4 दिन पहले कंप्लीट कराना है। नेक्स्ट, अगर आपने उसको कोई प्रॉमिस किया है कि आपको ये बुकलेट दिया जाएगा, आपके 100 नंबर ऑफ टेस्ट किए जाएंगे, तो फुलफिल दैट प्रॉमिस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, सबसे पहले आप बॉन्डिंग क्रिएट कर लो। यदि कोई स्टूडेंट आता है और आप उसके दर्द को अपना दर्द समझते हो तो वो आपसे लिंक हो जाता है, अब वो किसी भी सिचुएशन में आपको छोड़कर नहीं जाएगा। सो प्रोफेशनल मीन्स कि आप उसको समझें और उसके माइंडसेट के हिसाब से उसे पढ़ाएं। जरूरी नहीं है हर बच्चे को सेम डिलीवर किया जा सके, कुछ पढ़कर ज्यादा जल्दी समझते हैं, कुछ सुनकर समझते हैं, कुछ देखकर समझते हैं। तो हमारे यहाँ पे कोई एडमिशन लेने आता है, वो पूछता है कि फीस क्या है, तो हमारे यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है जो बाकी जगह होता है कि आप पहले फीस डिपॉजिट कराइए उसके बाद क्लास में बैठिएगा।
हम लोग उनसे बोलते हैं आप पहले 2 दिन 5 दिन आ जाओ फ्री ऑफ चार्ज, आप आराम से पढ़ो यहाँ पर, आपको यहाँ पर पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है, सब समझ में भी आ रहा है और सब कुछ सेटल हो गया, तो 5वें दिन आप फीस के बारे में पूछना, और फिर भी आपको फीस ना जमे तो आप छोड़कर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हमारा जो है ये स्ट्रक्चर रन होता है, जिसमें फीस वाला जो पॉइंट है वो सेटिस्फेक्शन होने के बाद बताया जाता है। अगर 5 दिन में बच्चा सेटिस्फाइड हो गया तो फिर वो फीस को नहीं देखेगा, और आप उसके ऊपर डायरेक्ट फीस थ्रो कर दोगे तो वो प्रोफेशनल, सो कॉल्ड प्रोफेशनल कहा जाता है उसे, बट वो प्रोफेशनलिज्म है नहीं। आई ओके। बिलीव कि आप अपना कस्टमर को पहले सेटिस्फाई कर लीजिए, उसके बाद आप जो प्राइस देंगे ना कि 100 रुपया 200 रुपया 2000 रुपया, वो देने के लिए तैयार रहेगा। ओके ओके ओके। एंड व्हाट आर द कोर्सेज यू रन, और किसका कोचिंग आप देते हो, व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग इन आईसीसी? ओके, आईसीसी में मेरे मेजर 2 काम है, एक तो सीए और सीएस स्टूडेंट्स का क्लासेस लेना, और दूसरा मैनेजमेंट पार्ट है। और जो एकेडमिक पार्ट है उसके लिए हम लोगों ने फैकल्टीज रखी हुई है, सो अराउंड 10 to 12 फैकल्टीज है जो इंस्टीट्यूट पे आती है। टैक्सेशन और लॉ, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसे मैं खुद लेती हूँ, और बाकी का टाइम जो है मेरा वो मैनेजमेंट में जाता है। मैनेजमेंट में भी जो टीचर्स हैं हमारे यहाँ के, जो फैकल्टीज है, वो उनका ऐसा फैमिली रिलेशन है कि अगर मैंने उनको किसी दिन कह दिया कि आज आपको 1 घंटा ऊपर रुकना है, सो आज तक मेरे मतलब 4 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में एक बार सिंगल टाइम ऐसा नहीं हुआ कि किसी फैकल्टी ने मना किया होगा कि मैम आज हम नहीं रुकेंगे, और छुट्टी होने के बावजूद भी एक फोन पर आए। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले दिन उनसे एक बॉन्डिंग, एक रिश्ता क्रिएट किया जाता है कि यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। मैम म्यूट है Excellent. आपका। Yes, yes. So excellent. I think business जब women एक entrepreneur बनती हैं तो उसमें emotional touch always it comes, right? I think वो हमारा एक basic nature है, वो हमारा एक basic characteristics है जिसको हम always भी carry into the business as well. So amazing to know this. Now let's come to the real challenges as a women we are facing, right? तो कितनी भी हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर ले, कितना भी हम विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के सपोर्ट सिस्टम, इकोसिस्टम की बात करें, फिर भी आज भी बहुत सारे ऐसे बेसिक इश्यूज हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो एक विमेन एंटरप्रेन्योर फेस करता है, राइट? आपको आपकी ये पूरी जर्नी में फ्रॉम फॉर एक्सेलेंट स्टूडेंट से लेके एज एन एंटरप्रेन्योर, कहीं पे ये ऐसे इश्यूज आपने फेस किए हैं as a gender specific? If yes, then it would be great if you elaborate. ऑफ कोर्स इट्स यस, और शायद सबके जीवन में ये यस जरूर होता है, चाहे वो कितने भी छोटी सिटी में हो या कितनी भी बड़ी मेट्रो सिटी में हो। छोटी सिटीज में जो कंस्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर किसी ने ऐसा पहले किया नहीं है। मैंने जो यहाँ पर किया ऐसा किसी ने पहले किया हुआ नहीं था, तो मेरे खुद के पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा मतलब वो खुद मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये कैसा पॉसिबल है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने उनको पहले ये चीज शेयर करी थी तो उन्होंने मुझे हाँ इसलिए बोल दिया था बिकॉज दे थिंक कि इट्स अ जोक, मतलब मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए बोल रही हूँ और होना जाना कुछ भी नहीं है, तो चलो कह देते हैं बच्चा खुश हो जाएगा। और मैंने मेरी एजुकेशन कंप्लीट होने के पहले ही इसको स्टार्ट कर दिया था। जब स्टार्ट हुआ तो अब दिक्कत होने लग गई लोगों को, ये क्योंकि मेरे जो एक पार्टनर है वो मेल है और पहले वो अनमैरिड थे, तो अब छोटे शहर की मेंटेलिटी क्या होती है, आप लड़के के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे, देर रात तक ऑफिस में रहते हो और फिर देर रात तक आते हो, यदि आपको कोई चीज़ परचेज करनी है या नया फर्नीचर लाना है या व्हाटएवर आपको कुछ नया करना है तो आपको ओवरनाइट या बहुत रात तक बैठना पड़ता है। तो छोटे शहर में ये सबसे बड़ा कंस्टेंट है कि आप लड़की होकर इमेज कैसे आपकी मेंटेन रखो। लोग आपका प्लस पॉइंट नहीं देखते, माइनस पॉइंट देखते हैं। सो दिस वाज द बिगेस्ट चैलेंज कि कैसे आपको वो इमेज क्रिएट करना है, ब्रांड क्रिएट करना है। सेकंड, खुद की फैमिली को कन्विंस करना कि यू आर डूइंग राइट थिंग, आप गलत नहीं कर रहे हो, या ऐसा नहीं है कि आपने घर वालों से बचने के लिए या व्हाटएवर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बताने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाती है एक लड़की के प्रति जो सोच डेवलप हो जाती है। इसके लिए 1 साल वेट किया और
1 साल बाद ऑटोमेटिक सबकी जो धारणा थी वो चेंज हो गई। वैसे जनरली हमने मिड सेशन में स्टार्ट किया था तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि 5 या 10 स्टूडेंट भी रजिस्टर्ड होंगे क्या। लेकिन फर्स्ट ईयर में ही अराउंड 70-80 स्टूडेंट रजिस्टर हो चुके थे जो मिड सेशन स्टार्ट हुआ था। तो जैसे ही वो चीज़ दिखी तो सब लोगों का माइंडसेट फिर वापस बैक टू नॉर्मल आने लग गया कि येस इट इज़ पॉसिबल। सो एज अ गर्ल चैलेंज इज कि आप एंटरप्रेन्योर बनो। आपको पता है आप शादी करके जा रहे हो फिर भी आप एक परमानेंट चीज खोल रहे हो, दिस इज अ चैलेंज। उसको आपको आगे फ्यूचर में कैसे मेंटेन करना है, दिस इज अ चैलेंज। और लड़के के साथ पार्टनरशिप करना और देर रात तक ऑफिस रहना छोटे टाउन का सबसे बड़ा चैलेंज है। कैसे आपने इसको ओवरकम किया, द इमेज का जो है, सो कॉल्ड इमेज? यस इसको ओवरकम करने के लिए बेसिकली सबसे पहले मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया कि क्या है, कैसा सिस्टम है, हम लोग कैसे वर्क करेंगे। बीच बीच में मैंने उनको बोला भी सही कि जब आप चाहो आप आओ विजिट करो। जब तक अपने फैमिली या अपने जो पेरेंट्स हैं वो अपने से कन्विंस नहीं होंगे और कॉन्फिडेंट नहीं होंगे ना, तब तक हम किसी और को राजी नहीं कर पाएंगे। सो सबसे पहले आप फैमिली को कन्विंस करो कि आप अच्छा चीज कर रहे हो। एक बार आपके पेरेंट्स भी आपके साथ हो गए, अब थर्ड पर्सन की बारी आई। थर्ड पर्सन देखता है आपकी सक्सेस। इसके लिए आप अपना जो सोशल मीडिया के टूल्स है वो यूज करो और उनको बताओ कि आप कितना अच्छा वर्क कर रहे हो। तो इसके लिए हमने स्टार्ट करा हमारे इवेंट्स करना। जैसे ही हमने कोचिंग खोला हम लोगों ने पब्लिक इवेंट्स किए, फैमिली इवेंट्स किए, कपल्स के लिए इवेंट्स किए, किड्स के इवेंट्स किए। तो लोग हम साथ जुड़ गए, अब वो भी हमारी फैमिली बन गए। अब उनको समझ में आने लग गया कि वाओ यार ये तो बहुत अच्छे इवेंट्स कराते हैं, ये तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं और ये आज तक पहले किसी ने किया नहीं था। सो सडनली विद इन मंथ्स लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो गई। ओके, एक्सेलेंट। सो अगेन यहाँ पे भी इमोशनल टच यू हैव एडेड ऑन। इमोशन से सब कुछ जीता जा सकता है। तो कहते हैं ना कि जो क्या कहते हैं, दवा से ज्यादा दुआ असर करती है। तो पैसा सबके पास है, डिग्री सबके पास है, लेकिन अगर So, आपने लोगों को अपना there is बना a cut लिया। off here. Hello, हेलो। hello. यस यस मैम। So, Kathy, there is a light off. There's a heavy rain here. Hello. सेम ईयर यस मैम। Yeah. So, I'm so sorry for getting disconnected. Now, again, I am getting connected with the another number. Hello. यस यस यू आर Yeah. ऑडिबल एंड Am I visible? यस। Visible may not be possible as. नो नो यू आर विजिबल, यू कैन Okay, कंटिन्यू। fine, fine. Yeah. So I think we were talking something about the challenges, the image building which you have done, right? Now the next question coming to you is on a multiple platforms. I used to tell to people that entrepreneurship is more about the psychological process. सो आपका जो विजिटिंग कार्ड बनता है ना, उससे बहुत टाइम पहले आपके दिमाग में आपका बिजनेस छपता है, या योर विजिटिंग कार्ड इज गेटिंग इम्प्रिंटेड। तो आपने जब ये शुरू किया, आपने जब ये पूरा जर्नी यू थॉट टू शेयर ऑफ, उस टाइम पे आपके साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या थे? इट वुड बी ग्रेट इफ यू हाईलाइट ऑन दैट। साइकोलॉजिकली यदि किसी भी बंदे को कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए हमारे श्री सलमान खान जी ने कहा है कि इंसान को एक किक की जरूरत होती है। तो अगर आपको कुछ अलग करना है दुनिया से तो आपके मन में कोई जील या मतलब एक जज्बा होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे मन में ये था कि बहुत छोटा शहर है, मुझे मेरे मम्मी पापा से दूर रहना पसंद नहीं है। फिर भी अगर मुझे कुछ भी एजुकेशन के तौर पर लेना है तो मुझे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। एंड आई वॉन्ट कि जो बच्चे मेरा तरह का माइंड सेट रखते हैं उन्हें ये शहर छोड़कर ना जाना पड़े। सो ये हुआ बेसिक आइडिया कि वाई यू वॉन्ट टू स्टार्ट। ओके। दूसरा ये था कि यहाँ पर ये सर्विसेज कोई और नहीं दे रहा। तो यदि आप कोई ऐसा बिजनेस करते हो जिसमें एक ही दुकानदार है तो कस्टमर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो आपके पास ही आएंगे।
क्योंकि वो ओके। इतनी चीज हो गई। सो सेकंड चीज ये रहता है। थर्ड चीज ये रहता है कि आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद है, तो आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करो जहाँ पे भले लोग आपके पास पढ़ने ना आए, बट यदि उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो आपसे पूछ सके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कोचिंग ज्वाइन नहीं करते, फिर भी हमने उनके लिए फ्री काउंसलिंग रखी हुई है। दे कैन हम्म कम एंड सो हम्म आप मुझसे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे, लेकिन आपको एक क्रक्स निकल के आया होगा। जो हम्म। मेन चीज है वो बिजनेस की साइकोलॉजी जो मेरी इसके पीछे है, वो ट्रू। है बॉन्डिंग। आप किसी से हम्म। अच्छा बनाओ, बॉन्डिंग बनाओ तो लॉन्ग टर्म चलेगा। Excellent, excellent. So, every business, whenever somebody starts, जब मैंने भी शायद शुरू किया था इतने लंबे एकेडमिक और सक्सेसफुल करियर के बाद, when I have decided to start a business, तो मुझे बहुत सारे डाउट्स हुए थे इनिशियली, और वो आई थिंक हर एक को होते हैं। यू लूज योर कॉन्फिडेंस, यू क्वेश्चन योर एबिलिटी। बहुत प्रूव्ड एबिलिटी होती है, बट फिर भी वो जॉब पे थी। बिजनेस का जब आता है चीज, तो ऑल ऑल गेम इज डिफरेंट। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा जाता है। तो क्या ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? हाँ, ऐसा हुआ है। मतलब कुछ दिन ही हुआ था, हम लोगों ने स्टार्ट किया, और बूंदी में होते हुए भी हम लोगों ने बड़ा ग्रैंड सा उसका वो रखा था, इनॉग्रेशन, कोचिंग हम्म इंस्टीट्यूट का। और हम्म हमारे जो बूंदी के एमएलए उनको इनवाइट किया था, बूंदी के नगर परिषद के जो चेयरपर्सन है उन्हें इनवाइट किया था, तो काफी ग्रैंड हो गया था वो। हम्म और जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था, उस दिन तक हमारे पास सिंगल स्टूडेंट रजिस्टर्ड नहीं था। सो ऐसा था कि हमने इनॉग्रेशन कर दिया है, बट नेक्स्ट डे क्या, नेक्स्ट डे आपके हाँ। पास टीचर्स तो है, बट आपके हम्म पास कोई स्टूडेंट नहीं है। हम्म सो जो 2-3 दिन जब स्टूडेंट नहीं आए थे, 2-3 दिन जब हम सिर्फ पब्लिसिटी कर रहे थे, वो 2-3 दिन थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार अपन ने इतना भारी सेटअप कर लिया है और इनॉग्रेशन करके भी सबको बता दिया है, अभी ये नहीं चला तो हम्म। मतलब सालों तक आपको सुनना पड़ेगा कि और ओके करो और सोचो। सो वो दो ओके। तीन दिन उसकी फीलिंग रही थी, और जैसे ही वो फीलिंग आई मैंने कहा नहीं, अगर अपन ने कुछ सोच लिया, अभी फेलियर हम्म तो हो ही नहीं सकता, अब उसको हम्म सक्सेस भी होना पड़ेगा। तो हम्म करना क्या है, तो बेसिकली फिर हमने चूज किया, हम लोगों ने एक एजुकेशनल मूवी का फ्री एक इवेंट रखा। जैसे हम्म मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने इवेंट रखना स्टार्ट किया। अभी होता क्या है, जैसे फ्री वर्ड आता है ना, तो 50-100 लोग तो आ ही जाते हैं फ्री में। हम्म। तो सबसे फर्स्ट इवेंट जो था हमारा 4-5 दिन के अंदर अंदर ही, वो था फ्री हम्म मूवी फॉर किड्स। हम्म। हमारे पास 100 बच्चे आए, उन 100 में से इमीडिएटली लोगों को पता लग गया कि अच्छा ऐसा कुछ है, और एडमिशन्स होना चालू हो गए, और जो स्थिति 3 दिन पहले थी, 3 दिन बाद कुछ और हो गई। ओके। Excellent, excellent. So again, psychology you have played. So हमेशा मैं बोलती हूँ कि business is more about a psychology than the technical inputs you are giving into. So excellent, Khyati, excellent. Now, parents, family matters a lot. As a एक तो as a gender, as a female entrepreneur, specifically when you go for your family, your peers, your friends, your relatives, they play a vital role. I don't know positive negative in what extent, but they play a vital role. Now आपकी life में your parents, your family, what is their role? जो है, जितना है या कुछ भी करना है, अगर आपके साथ माँ बाप है और माँ बाप की खुशी है तो ही करना है। अगर वो खुश नहीं है ना, तो आप करोड़पति बनकर भी कुछ नहीं करोगे जिंदगी में। हम्म तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फर्स्ट चीज आपके मम्मी पापा कन्विंस होना चाहिए, आपकी फैमिली कन्विंस होनी चाहिए। अगर मैंने आज सपोज 100 बच्चों को पढ़ा लिया, पर वो 100 बच्चों को पढ़ाने की खुशी में जाकर किसको बताऊंगी, अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है तो। हम्म लेकिन अगर आपकी फैमिली आपके साथ है ना, तो वो 5 बच्चों को भी आपने पढ़ाया ना, तो वो उसका भी जश्न मना देंगे कि वाह मेरे बच्चे के पास 5 बच्चे आ गए। और उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, और आप बहुत खुश रहोगे। खुश रहोगे, अच्छा सोचोगे, और अच्छा सोचोगे तो फेलियर के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे।
एक्सेलेंट। बट ख्याति, बहुत सारे फीमेल स्टूडेंट्स को जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ और उनसे जब मेरी बात होती है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज उनमें हमेशा रहता है कि कैसे कन्विंस करें। सी, कन्विंस करना इज असेंशियल, बट देन व्हाट आर द वेज ऑफ कन्विंसिंग देम? अगर उसका आप थोड़ा बहुत कुछ आइडिया दे सकते हो, बिकॉज इट्स वेरी चैलेंजिंग, यू नो। यस, हम्म। मैंने एक चीज नोटिस करी है, हम जनरली पेरेंट्स को उस चीज को लेकर कन्विंस नहीं कर पाते जिसके लिए हम भी 100% कन्विंस नहीं है। ओके। यदि मेरे को डाउट है कि मैं नहीं कर सकती ऐसा, तब तो आप बिल्कुल कन्विंस नहीं कर सकते किसी को भी। तो फैमिली से भी पहले यदि कुछ है तो आप बताओ कि आप क्या बता सकते हो कि क्या चांसेस है, मैंने क्या वर्किंग करी है, किस तरीके से हम इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। मैंने आपको बताया कि मेरे पेरेंट्स ने उसको एक जोक ले लिया था कि यार ठीक है, हम्म। मजाक मस्ती चल रही है, हम्म। लेकिन मैंने वो करके दिखा दिया। ओके, ओके, ओके। फिर मैंने ये। उनको एक, अपन जैसे बैंक में प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं ना, हम्म। वैसे आप अगर अपने पेरेंट्स को प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाओगे ना कि देखो ऐसा है, ऐसा है कि मैंने सोच लिया है, यहाँ से इसका जो फर्नीचर आएगा, सेटअप मेरा यहाँ होगा, और ओके। उसके बाद हम जो है इस तरीके से वर्क करेंगे, हमारा एग्रीमेंट ये रहेगा। अच्छा चलो ठीक है, हम्म। हो सकता है 2 साल बाद मेरी शादी हो जाए, तो उसके बाद मैं दूर से ही उसको मैनेज करूंगी, वो भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। अभी जब आप हाँ। इतना सिंसियरली अपने पेरेंट्स को बताओगे तो उनको लगेगा कि हाँ, शायद कुछ है इसके अंदर। मैंने पहले वर्किंग जो करी वो साइलेंटली करी, ओके। मैंने बताया नहीं कुछ, पहले अपना बेस फाउंडेशन रेडी किया। क्योंकि पापा मम्मी के सामने जाते ही वो क्या करेंगे ना, क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे करोगे, अच्छा कौन आएगा, अच्छा कैसे चलेगा तुम्हारा। तो अगर आपने वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो आपका हो गया कैंसिल। अब क्वेश्चन का आंसर आप दोगे कैसे, जब आपने उसका होमवर्क किया हुआ होगा, जब आप 100% कन्विंस हो गए। ओके, क्योंकि ये बहुत सारे फीमेल का ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इवन लॉट्स ऑफ मेल स्टूडेंट्स आल्सो समटाइम्स दे फेल इन कन्विंसिंग देयर पेरेंट्स। सो ये बहुत अच्छा आपने बताया कि जैसे बिजनेस प्लान बना के बैंक में सबमिट करते हैं, तो उसी मेथड से और उसी तरीके से अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करो तो वो हो जाएंगे। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। आज आपके पेरेंट्स, मतलब what are their feelings on for you today about your business, about a women entrepreneur, what they feel? ऐसा कह सकती हूँ कि खुशी से उनकी आंखें भर आती है बहुत बार। और हाँ। जब वो देखते हैं कि किस तरीके से हमारे लिए, मतलब वो घर में मुझे जिस नाम से बुलाते हैं, तो कि हम हमारे लिए जो बच्ची है, बाहर जाके जब लोग उन्हें मैम बुलाते हैं, तो वो जो खुशी है वो उनके चेहरे पर दिखती है। Okay, excellent, excellent. So it's a very proud moment. Now, एक बहुत ही relevant question in terms of कि women entrepreneur और इस जनरल women, हमारा जो पूरा लाइफ स्पैन होता है वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, राइट? प्री मैरिज, पोस्ट मैरिज, प्री किड, पोस्ट किड, there are different stages, right? और जो ट्रांजिशन हम फेस करते हैं एज अ women, as a opposite gender compared to men, so that is something which is too much, right? So जैसे आपने बताया कि शादी से पहले you are doing this, now what are your plans after marriage for your business specifically? या अगर वैसे तो हम लोगों का एक प्रॉपर सेटअप है, तो इस तरीके से कि अगर मैं मैनेजमेंट डिस्टेंस से भी कंटिन्यू करती हूँ तो आई विल कंटिन्यू एज अ पार्टनर। सपोज मेरी शादी आसपास में होती है तो नथिंग विल चेंज, सब कुछ एज इट इज चलता जाएगा। अगर मेरी शादी थोड़ा सा दूर हो जाती है तो कोई टेंशन नहीं है, हम लोग, मैंने इसीलिए इसको पार्टनरशिप में स्टार्ट किया है ताकि ये एक बार खुल गया तो बंद ना हो। जो बूंदी में है वो मेरे पार्टनर है, वो बूंदी में, मतलब वो उनकी शादी हो चुकी है, सो ही सेटल नाउ, कहीं नहीं जा रहे। बूंदी वाला विल कंटिन्यू, हम कंटिन्यू फैकल्टीज रखते जा रहे हैं, और मेरे जो सब्जेक्ट्स है उसका भी ऑल्टरनेट करते जा रहे हैं, ढूंढते जा रहे हैं। अभी जैसे मेरी शादी होती है और सपोज मेरी शादी जयपुर में होती है, तो आई कैन स्टार्ट अ ब्रांच जयपुर में, जाके मैं इनोवर्स कैरियर क्राफ्टर्स का जयपुर का ब्रांच खोल दूंगी।
और इससे ओके। डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत इजीली हो जाएगा। हम्म। हाँ, because hands-on experience, so you are already having to run this particular thing. Okay, okay, excellent, excellent. So, एक जो आत्मा है एंटरप्रेन्योर की, वो तो जीवित है और वो हमेशा शायद रहेगी, फिर वो बूंदी में हो या राजस्थान के बाहर हो। बट ये हाँ। तो है ही, और साथ में ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही चलाना है। माय वन ऑफ द ड्रीम इज टू ओन अ फैक्ट्री, मतलब मुझे ऐसा है कि कुछ का मैन्युफैक्चरिंग वर्क हो, तो आफ्टर मैरिज वो भी होगा। Okay, okay, excellent, excellent. Now, next question, Khyati. 10 years down the line, आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो? After 10 10 इयर्स, years, yes. यस, आफ्टर 10 इयर्स तो क्या मैं आपको बचपन से बताती हूँ, जब इन ना समझ होता है ना, तब उससे पूछा जाता है हाँ, कि बेटा तू बड़ा होके क्या बनेगा। हाँ, हाँ, और हाँ, तब हाँ. से उस बचपन से लेकर आज तक मैंने एक ही चीज बोली है कि मैं फेमस होंगी, नाम कमाऊंगी। और 10 Okay, इयर्स के बाद भी आई वांट कि जैसे आज मैं डिफरेंट सिटीज के लोगों के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, बहुत मल्टीपल लोगों के साथ मैं कनेक्ट करूँ। और एक सपना जिसे कहते हैं ना, जीवन जीने की जो मतलब रीजन, वो ये है कि hmm. अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझे एक कॉल करे और मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। 10 साल बाद मुझे Okay, ऐसी पोजीशन चाहिए। okay. So one-stop solution you wanted to be. यस, पैसा आप किसी से भी कमा सकते हो, लेकिन आप ऐसा वर्क करो कि आपके पास इतना अच्छा सब कुछ सेटअप हो कि आप हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर लोग आपके पास प्रॉब्लम लेकर आ रहे हैं, मतलब आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। Excellent, excellent. So we wish you कि आप you be that the dream which you are living. And हम भी कभी बोलेंगे she and we proudly that ख्याति मैडम हमारे वहाँ भी एक सेशन के लिए आए थे. So that's what we wish you. Now, Khyati, next question is बहुत सारे potential women entrepreneurs and male entrepreneurs जो students हैं, आपको पता है आजकल startup is a fashion, right? It's in trend and everybody wants to start their own. Everybody wants to be an entrepreneur. So, as a successful entrepreneur, you have spent 4 years in the industry. You have seen all the problems of an entrepreneur very closely, of an enterprise, and as an entrepreneur, you have faced everything. Now, आपकी क्या advice रहेगी ये सारे potential women entrepreneurs को? Women and male, both the entrepreneurs. यस, जो भी पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर मतलब है नया आइडिया। दैट मीन्स अगर आप किसी को कॉपी करके स्टार्ट कर रहे हो तो आप खुद को एंटरप्रेन्योर नहीं बोल सकते। तो आपके पास एक यूनिक आइडिया होना चाहिए, सबसे फर्स्ट थिंग, अगर आप खुद को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हो तो। सेकंड थिंग, हो सकता है जो आइडिया आपके लिए नया हो वो ऑलरेडी मार्केट में रन कर रहा हो। और अगर आप ऐसा ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो जो आपकी सराउंडिंग में रन कर रहा है ऑलरेडी, तो यानी आप जब ऐसे बिजनेस में जा रहे हो जिसका सक्सेस रेशियो पहले ही कम है, सो आप यदि पोटेंशियल है तो आप अपनी कैपेबिलिटी के साथ साथ एक ऐसी चीज भी देखिए जो सराउंडिंग की रिक्वायरमेंट है। तो उससे आपका क्या होगा ना, आपको चीज से सक्सेस होगी आपके टेन्योर में। दूसरा क्या होता है, जो भी एंटरप्रेन्योर होता है वो चाहता है कि मतलब मैंने बिजनेस किया है, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, तो मैं आज दुकान खोलूंगा और 1 लाख रुपए की जो है मेरे पास इनकम आ जाएगी। ये सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस होता है। सो अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आप सोच लीजिए कि 1 साल आपको अपनी जेब से पैसा भरना है। अगर आप इस सोच के साथ काम करोगे तो आप पहले साल में भी प्रॉफिट कमाओगे। पर आप प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर चालू कर दिया पहले दिन से ही, तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। Excellent, excellent. So जो हर भी एक बिजनेस को पोटेंशियल है, हाँ. यस, जो भी पोटेंशियल है उन पोटेंशियल के लिए जरूरी ये है कि आप आपके टैलेंट को रिक्वायरमेंट से मैच करके स्टार्ट करें। और स्टार्ट करने के बाद 1 साल खुद की जेब से पैसा लगाने के लिए तैयार अगर आप हैं और आप सक्षम हैं तो ही करिए। और अगर आप नहीं लगा सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, तो नहीं, फिर नहीं करिए, क्योंकि फिर वो डिप्रेशन और फिर गलत हो जाना, ट्रैक पकड़ लेना, वो हो जाता है।
So premature delivery will happen if you don't have that mentality. Now, यस। ख्याति, स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें विमेन एंटरप्रेन्योर्स का, तो टोटल जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं अक्रॉस इंडिया, उसका सिर्फ 14% वी एज अ विमेन एंटरप्रेन्योर्स वी कैरी. So the statistic is not motivating. It is not impressive, right? So obviously we need more women entrepreneurs to come into a mainstream. We need there is a time of the need of the time. We should have more role models as a women entrepreneurs, right? Now इसके बारे में आपके क्या thoughts हैं? मतलब how we can increase this number as a whole ecosystem? कोई भी चीज को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। आप एक विमेन एंटरप्रेन्योर को बोलिए कि आप एक नई विमेन एंटरप्रेन्योर। हम सब एक चीज जानते हैं, यदि विमेन की सबसे बड़ी कोई दुश्मन है तो विमेन खुद है। एक स्त्री को अगर आगे बढ़ने से कोई रोकता है तो वो कोई दूसरी स्त्री उसे रोक रही है, चाहे वो उसकी माँ हो, सासू माँ हो, या रिलेशन में हो, कोई भी हो। सो बेसिकली यदि एक लेडी ठान ले कि अगर मैंने बिजनेस किया है तो मैं किसी एक को एंटरप्रेन्योर बना के रहूंगी, तो ये आंकड़ा बहुत जल्दी बढ़ेगा। और मैं ये ऐसा नहीं कि कोई प्रवचन टाइप आपको बता रही हूँ, ये मैं कर चुकी हूँ। I have already settled one women entrepreneur and she has successfully completed 1 year of entrepreneurship. और Excellent. अभी आप उनसे जाके बात करते हैं अगर, तो वो उनके लिए मैं खुदा हो गई, क्योंकि उनको मैंने स्टार्ट करा और उन्होंने अपने लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि वो अपनी लाइफ में कभी कोई बिजनेस का भी करेंगी क्या, या अपनी लाइफ में कुछ खुद के लिए करेगी क्या। शी वॉज सिंपल हाउस वाइफ। सो यदि एक ठान ले कि मुझे एक तैयार करना है तो एक से एक समुंदर बढ़ता जाएगा। Excellent, excellent. So I think we need to stand together for ourselves. That's the यस। need of the time. बढ़िया बढ़िया. Now, ख्याति, मेरा जो next question है is about the COVID time, right? और हमारे audience में से भी question आया था. Ritesh sir is an academician, very prominent academician. He has asked a question कि COVID के time में, because overall अगर women entrepreneurs की भी हम बात करें तो there are many entrepreneurs those who are working from home, right? And COVID में उनका business भी ठप हो चुका है. Those who are doing self sustainable business, उसमें भी issues हैं. तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि कोविड की सिचुएशन में, अभी स्टिल पोस्ट कोविड नहीं बोल सकते क्योंकि स्टिल कोविड इज ऑन, तो प्री कोविड थिंग्स वर डिफरेंट, राइट नाउ वी आर लिविंग विद कोविड. सो ऐसी सिचुएशंस में बिजनेस को कैसे संभालना, हाउ बिजनेस शुड गेट कंटिन्यूअस रेवेन्यूज, प्रॉफिट्स, और उसको कैसे सस्टेनेबल करना, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? यस। अभी जो सबसे ज्यादा लॉस लगता है ना, वो ऐसे बिजनेसेस में लग रहा है जो नेसेसिटी में नहीं आते। मैं देख सकती हूँ जैसे फर्नीचर हो गया, फर्नीचर नेसेसिटी में नहीं आता तो वो सबसे डाउन जा रहा है उसका मार्केट। तो सबसे ज्यादा कंसर्न वाली बात इन बिजनेसेस के लिए है जो बहुत डाउन जा रहे हैं। अब ये बिजनेस क्या करें? अभी अगर आप बिजनेस स्टार्ट, तो आप हमेशा डाइवर्सिफिकेशन की सोचिए। आप नंबर ऑफ थिंग्स ऑफर ज्यादा करिए, वेराइटी ऑफर करिए। अब मैं आपको बात बताती हूँ फर्नीचर की। अगर हम बात करते हैं कि फर्नीचर वाला बिजनेस नहीं चल रहा, तो आप अपने आसपास के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनसे टाई अप कीजिए। अभी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, बेड की ज़रूरत है, बहुत सारा वो मशीनरी लगा रहे हैं, सैनिटाइजिंग के लिए कुछ शेड वगैरह बना रहे हैं। तो जो कारपेंटर सोफा बना सकता है वो कारपेंटर शेड भी बना सकता है, वो कुछ और वर्क भी कर सकता है, फिटिंग वर्क भी कर सकता है। सो आपको ये देखना है कि अभी मैं जो मेरा रेगुलर वर्क है, सोफा बनाना, डाइनिंग टेबल बनाना, वो तो कर रहा हूं, पर उसी स्किल को लेकर अभी क्या जरूरत है, वो क्या काम कर सकता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ओके, एक एक्सेलेंट. केस मैं आपको बताती हूँ। उनकी सोने चांदी की दुकान थी और उनको भैया की 2-3 महीने चलना नहीं है,
उन्होंने इमीडिएटली अपने दुकान का सामान समेटा और बाहर सब्जी खरीद के और वहां पे डिस्प्ले लगा दी। तो ये भी हो सकता है, आप अपना टेम्पररीली अपना बिजनेस को थोड़ा सा शिफ्ट ऑन कर सकते हो, क्योंकि अभी वो बिजनेस रन नहीं हो रहा है तो आपने साइड में कुछ और रन कर लिया। हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को भी कि नहीं आप फर्नीचर लो ही लो। उसके बाद बात आती है केटरिंग बिजनेस की। अभी आप देखना बहुत अच्छा किया था, जितने भी केटरर्स हैं उन्होंने लॉन्च था कि 50% का फूड का अरेंजमेंट 25,000 में। इतना अट्रैक्टिव सा उन्होंने निकाला वो सिस्टम, होटल्स वालों ने और केटरिंग वालों ने। उनका उसमें मार्जिन तो कम था, बट उन्होंने उससे कम से कम अपना जो रेगुलरिटी है वो मेंटेन कर ली, प्रॉफिट मार्जिन कम करके। तो हम इस कोरोना टाइम में हमारे कस्टमर्स को मेंटेन कर सकते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करके। हम हमारे बिजनेस को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। थर्ड चीज, हम लोग अगर ऐसा कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो हम घर तक पहुंचा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम फूड आइटम बना रहे हैं, तो हम सोशल मीडिया पे प्रमोशन, हैंडमेड प्रॉपर्ली से आप एक प्रमोशनल वीडियो बना सकते हैं जिसमें आप सामान बना के शूट कर रहे हैं कि किस तरीके से वो सामान बना रहे हैं, कितनी क्लीननेस के साथ बना रहे हैं, इसका होने का कोई भी डर नहीं। इस प्रमोशनल वीडियो को आपने फेसबुक पे, इंस्टा पे अपलोड किया, उसके बाद आपने उसको बूस्ट कर दिया, सराउंडिंग तक लोगों तक पहुंचेगा, ऑटोमेटिकली लोग ऑर्डर करेंगे। ऐसा कोई चीज नहीं है जो रुकी नहीं हो, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जो रुका हो, लोग पर भी खा रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपने क्या रिलेशन मेंटेन किया हुआ है। अभी पानी बताशे वाले अंकल है, मुझे पता है कि वो अंकल घर पे बहुत सफाई से बनाते हैं, तो मैं उनके चले जाऊंगी खाना खाने। तो बेसिकली आपको अपना क्वालिटी दिखाना है। और अगर आपका बिजनेस फिर भी नहीं चल पा रहा है तो आप टेम्पररीली किसी पे थोड़ा सा शिफ्ट अप हो सकते हो। Excellent, excellent. So diversification is the need of the time, and I think सबने ये realize कर लिया है कोविड के टाइम पे। तो excellent, excellent. So it is a need of the time. Just give me 2 minutes, huh, Kathy? हाँ, Yes. So now it's audible. Yes. So, Kathy, the next question is, every woman is, always have lots of question about her ability, और शायद हमारा social setup ऐसा है, शायद हमारा, हमारा influencing environment है वो ऐसा है कि कहीं ना कहीं पे, we lack of confidence, we have fear, and we lack of role models. विमेन एंटरप्रेन्योर्स मेन स्ट्रीम में नहीं आने के अगर सबसे बड़े रीजंस हैं तो ये 3 हैं। तो कॉन्फिडेंस हम नहीं डेवलप कर पाते हैं, रिस्क हम नहीं ले सकते हैं, हमें कंटिन्यूअस डर रहता है कि ये सही होगा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास रोल मॉडल की कमी है, ये पूरी साइकिल रोटेट होती है। So you as a women entrepreneur, how you are putting your highlight on these 3 points? How one female can improve on this 3 criterias? So your views. कुछ चीजें हम कहते हैं कि बाय बर्थ आती है, तो कुछ वीमेंस तो क्या है बाय बर्थ ही एंटरप्रेन्योर बॉर्न होती है। जैसे हमारे क्रूति मैम है, तो वो तो बचपन से डायनामिक बॉन्ड हुए, तो उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज है, तो यदि उन्हें कोई पुशअप नहीं करेगा तो भी शी कैन अचीव समथिंग। अब दूसरा सेगमेंट जो आता है जिन्हें पुश करने की जरूरत है। सो मेरा ये मानना है कि अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, सपोज आप एंटरप्रेन्योरशिप को एक बार साइड में रखो, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो और आपको पता है कि यू आर नॉट डिसिप्लिन, फॉर एग्जाम्पल मैं इतना डिसिप्लिन बच्चा नहीं हूँ, नॉटी भी हूँ, और पर ये मुझे पता है कि मैं इतना डिसिप्लिन नहीं हूँ, तो मैंने क्या करा, अपनी मम्मी को बोल दिया कि मम्मा मुझे इतना घंटा पढ़ना है, आप याद दिला देना, मुझे इतनी बजे उठना है, आप याद दिला देना, मुझे ये करना है, आप याद दिला देना। मैंने मेरे सर की सारी टेंशन जो है मम्मी को पकड़ा दी। अभी मम्मी क्या हो गया, एक अलार्म क्लॉक सेट हो गया जिसे आप है ना बंद भी नहीं कर सकते हो।
अब मम्मी हर थोड़ा इंटरवल में आपको बताएगी करो, अभी इतना घंटा नहीं हुआ है, तुमने कहा था ना ऐसा करना है। आपको क्या मिल रहा है? रेगुलर पुश मिल रहा है। आपको रेगुलर पुश मिल रहा है, आप ऑटोमेटिकली वो टारगेट अचीव कर जाओगे। सो आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि ठीक है मुझे कुछ करना है, पर मुझसे खुद से नहीं हो पाएगा। तो आप एक अपनी फैमिली में से या आपके फ्रेंड्स में से जिसकी भी आप सुनते हो, एक ऐसा व्यक्ति चूज करो और उस व्यक्ति को बता दो कि मुझे ये करना है, मैं चाहती हूँ बिजनेस करना, या मैं चाहती हूँ कि मैं ये कुछ अचीव करूँ, या मैं चाहती हूँ कि 8 घंटा मैं ये काम करूँ। अब वो बंदे का हेडेक हो गया, अब वो बंदा आपको पुश करे। आपको पहले वो बंदे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी लाइफ में सब इतने ब्लेस्ड नहीं होते हैं कि ऐसा व्यक्ति हो। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो आपका फ्रेंड है या आपका फैमिली पर्सन है, और वो आपको कंटिन्यू पुश करता रहे। Excellent, excellent. So I think majority of the questions or majority of the areas we have covered. It's really थोड़ा बहुत मुझे पता था आपके बारे में, but आज बहुत अच्छा लगा to know about you, to know about how you are a woman of substance, and about your hard work, your passion, and you as an overall personality. So बहुत मजा आया ख्याति, and I think majority of the questions हमने cover कर लिए हैं. So with this note, we can end this meeting. She&V Women Entrepreneurship Foundation is really thankful to you for coming here and joining us for this webinar series. We wish you all the best for your business, and we wish you all the success. आप 4 साल में जितना अचीव किया है, नेक्स्ट 4 साल में आप उससे तिगना अचीव करो. So it was excellent. Best wishes. Do well. Enjoy. Take care of your health. Thanks to all the participants for joining us. Thanks a lot for your time, valuable time with us. Bye bye. See Thank you. you. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Thanks for inviting me. Thank you for joining us.